Hello friends, my name is Animesh Patel. It is the second part of intermediate code generation. In first part, we have discussed the input of intermediate code generation. Which type of input actually the intermediate code generation will receive and process that input using some implementation tool and generate the output. So, how many types of outputs are possible and how that output will be generated using some implementation tool. So we will discuss all these things with some example in this video. So let's start with intermediate code generation part 2, that is output of intermediate code generation. So after discussion of input, let's start discussion on output of intermediate code generation. As we discussed, output of intermediate code generation is three types. Uh, First is syntax tree. Second is postfix representation, that is polish, and third is three headers code. So input information is can be explained like that. A string of token is id is equal to id plus id star id. Then it will be converted to pass tree, and from pass tree we have received the information of sequence of production. So that is all about input, which we have discussed in previous uh, topic, that is input of intermediate code generation. After that, this information will be the input of intermediate code generation and three types of output. अब हम यहाँ आउटपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे. थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट्स कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एंड हाउ दे विल बी कन्वर्टिंग. फर्स्ट इज syntax tree, second output is polish notation, and third is three address code. क्लियर. लास्ट मैंने आपको बताया था थ्री एड्रेस कोड इज द मोस्ट प्रेफरेबल intermediate representation, and reason also we have discussed. So now input is sequence of production and output में आपको ये थ्री टाइप्स के intermediate code generate करना है. Out of three only one and preferable is three address code. Clear. So syntax tree क्या होगा, id is equal to id plus id स्टार id के लिए सिंटेक्स ट्री क्या होगा. सिंटेक्स ट्री मीन्स विच रिप्रेजेंट द सिंटेक्स, जो सिंटेक्स को लॉक कर दे, दैट इज सिंटेक्स ट्री. सो id इज इक्वल टू id प्लस स्टार id में जब भी हम सिंटेक्स ट्री बनाएंगे तो रूट नोड यहाँ भी रिक्वायर्ड है. रूट नोड in case of assignment statement, root node will be always the assignment operator, that is equal to. Clear. आप सबको मालूम है सिंटेक्स ट्री के बारे में, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ. And all the leaf nodes will be the operands, intermediate nodes will be the operator. Clear. So on right hand side of statement there is two operator, एक addition operator है और एक multiplication. Clear. And assignment operator के left hand side में कौन है, identifier, and right hand side में भी कुछ identifiers हैं जो as a operand operators के साथ connected हैं. Clear. So root node is equals to assignment operator, left and right child node will be the id, and id is the left child node, and plus will be the right child node, because again right hand side contain id plus id star id. So last operation out of these two operators, addition operator and multiplication. Clear. इन दो में से लास्ट ऑपरेशन क्या होगा, इन दो में से लास्ट ऑपरेशन होगा एडिशन. फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस इज मल्टीप्लीकेशन. क्लियर. सबको मालूम है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग. सो लास्ट ऑपरेशन विल बी एडिशन. क्लियर. सो at the time of generation of tree at top down approach, so last operation will be derived first. So again in syntax tree, next intermediate node will be the addition plus, and left child node of plus is id again, and right is again expression, sub expression id plus id star id is remaining on right hand side of plus operator, so that
Star will be the next child node of right child node of plus operator. Clear? After that, star operator will be having two child nodes again, that is ID, ID. Both are IDs. Clear? So that is the syntax tree representation. Clear? So I hope आज आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा what is the syntax tree and what is the parse tree, difference between parse tree and syntax tree. आपके सामने दोनों हैं, आज स्क्रीन पे आप देख सकते हो. Input is parse tree and output is syntax tree. Clear? Input is parse tree means which contains some grammar. Parse tree में आप ध्यान से देखिए, उसमें प्रोडक्शंस हैं, उसमें ग्रामर्स हैं. क्लियर? इनपुट को डेरिवेट करने के लिए कोई CFG, कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने अप्लाई की. अप्लाई करने के बाद उसमें दो टाइप के सिंबल्स हैं ग्रामर में, आइदर टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल. क्लियर? टर्मिनल मीन्स टोकन्स जो सभी लीफ नोड्स रिप्रेजेंट करेगा, और नॉन टर्मिनल्स मीन्स इंटरमीडिएट नोड एंड रूट नोड. दैट इज कॉल्ड पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री. क्लियर? बट इन सिंटैक्स ट्री all the nodes, whether it is root node, leaf node or intermediate node, all the nodes are terminals, tokens only. Clear? जो string आपको as a input मिली है, वही string में उसका एक syntax representation, syntax को लॉक करने के लिए syntax tree रहता है, और syntax को चेक करने के लिए आपका parse tree है, जिसमें आपको ग्रामर अप्लाई करके कुछ parse tree जनरेट करना है. क्लियर? दोनों बातों में डिफरेंस है. So I hope you understand. अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो please give your feedback and I will explain more effectively if possible. Clear? Second is polish notation. Polish notation जैसा मैंने आपको बताया is nothing but the postfix representation, and ID is equal to ID plus ID star ID का पॉलिश नोटेशन या पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ उसी का पॉलिश या पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है. आप सबको बहुत अच्छे से आता है. आईडी 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 स्टार प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके ऑपरेशंस को लॉक कर देता है. इसमें बोर्ड में एक बार आपने अगर उसको पोस्टफिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई भी कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं है ग्रामर को कि वो कौन से ऑपरेटर के थ्रू पहले कौन सा ऑपरेशन करे बाद में कौन सा करे. इस एग्जाम्पल में अगर सपोज करो कहीं ब्रैकेट्स भी यूज हुए रहते तो आप उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते. बट यू नो पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन यू नो वेरी वेल, सो नो नीड टू डिस्कस हियर. Clear? Now the most important thing is three address code. Friends, three address code of the given statement. The statement is ID is equal to ID plus ID star ID. Clear? तो थ्री एड्रेस कोड हम पहली बार आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बिफोर दैट तो हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर में एक बार डिस्कस किया था. बट ध्यान से देखो, थ्री एड्रेस कोड में हमें करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. आपको एक पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेटमेंट के ऑपरेशंस को डिवाइड करना है एक सिंगल ऑपरेशन में. सिंगल 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 कितने ऑपरेशंस आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में कर सकते हो, वो सब नंबर ऑफ थ्री एड्रेस कोड्स में कंसीडर किए जाएंगे. नंबर वन, ID इज इक्वल टू ID प्लस ID स्टार ID में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? दो आइडेंटिफायर्स जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से कनेक्टेड है उनका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा या ID प्लस ID पहले परफॉर्म होगा? अकॉर्डिंग टू बोर्डमा सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? सो थ्री एड्रेस कोड द ओनली इंटरमीडिएट कोड जो आपके लिए टेम्परेरी रजिस्टर्स क्रिएट करेगा. क्लियर? टेम्परेरी रजिस्टर्स ये प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं, इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इनफाइनाइट टेम्परेरी रजिस्टर्स जनरेट कर सकते हो. क्लियर? सो टेम्परेरी रजिस्टर्स को हम टेक्निकली बोलते हैं टेम्परेरीज, and the name of temporaries will be the T1, T2, T3, T4 up to Tn. Clear? So first temporaries means which contain some temporary calculation. So in ID is equal to ID plus ID star ID में ID star ID का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको कहीं भी परमानेंट किसी वेरिएबल में स्टोर तो नहीं करना है. क्लियर? सो आपको उसको टेम्परेरीली स्टोर करना है. सो वी विल यूज
T1 is equal to ID star ID. So T1 is a temporary register. Next, T2 is equal to ID plus T1. Clear? Second operation, according to Borma's, second operation will be the addition. So ID plus, and the sub expression ID star ID is now stored in T1. So we will use ID plus T1. Clear? Okay, right hand side is completed. Now, which operator is pending? Operator is assignment operator. Clear? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो आइडेंटिफायर है वो परमानेंट रजिस्टर है और आप उसकी आर वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, ना कि एल वैल्यूज को, सॉरी एल वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं. एल वैल्यूज मीन्स मेमोरी लोकेशन ऑफ दैट वेरिएबल एंड आर वैल्यू मीन्स एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट आइडेंटिफायर ऑफ दैट वेरिएबल. सो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो आइडेंटिफायर है, वी आर नॉट कॉलिंग द actual numeric value of that identifier, we are calling the memory location. So now the time we have to assign the value of right hand side expression into the left hand side identifier. So the last three address code will be ID is equal to P. Clear? So it is the three address code representation for the given input. Clear? So three address code we will use prefer always three address code. So in next examples just we will discuss three address code. Syntax tree and polish notation we will discuss when we will design the intermediate code generation phase. फिर जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पेज डिजाइनिंग सीखेंगे तब मैं आपको इसमें और डिटेल्स में बताऊंगा हाउ वी कैन क्रिएट द सिंटैक्स ट्री, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स एंड हाउ द पॉलिश नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, इन सब के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, है ना, आपको वो आउटपुट में कन्वर्ट करना है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाउ, फिर से मैं आपके साथ एक पॉइंट फिर से डिस्कस करता हूँ. अब देखो ध्यान से, इनपुट इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन. Here 9 production with a unique sequence 1 से लेके 9 तक. Clear? इसमें मल्टीपल रिपीटेशंस हुए हैं. Clear? F drives to ID मल्टीपल टाइम्स है, P drives to F भी मल्टीपल टाइम्स है. तो इनपुट कुछ इस फॉर्म में है. इनपुट किस फॉर्म में है? प्रोडक्शन की फॉर्म में है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म में है. और आपको आउटपुट क्या देना है? आउट ऑफ 3 रिप्रेजेंटेशन कोई एक, आइदर सिंटेक्स ट्री or polish or three address code. Clear? That is a very important task and very tricky task. आपको अज्यूम कीजिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ assumptions पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ ग्राफिक्स के थ्रू शो कर रहा हूँ. द इनपुट इज सेट ऑफ प्रोडक्शंस. क्लियर? बहुत सारे ग्रामर्स आपको इनपुट में मिलने वाले हैं और आउटपुट में आपको कुछ ये रिप्रेजेंटेशन देना है. आउट ऑफ 3 we are preferring 3 address code. So यहाँ से ये इंफॉर्मेशन को फेच करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन में से आपको ये टेम्परेरीज बनाना है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ये ट्री बनाना है. सो दैट इज अ ट्रिकी टास्क. क्लियर? एंड फॉर ऑल दीज प्रेजेंटेशन वी रिक्वायर्ड some small algorithms, we can say, that is called semantic action. Means हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो इनफाइनाइट नहीं है. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसकी जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, उसके स्टेटमेंट के सिंटेक्स के जो रूल्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं है. सो एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड हर पर्टिकुलर ग्रामर के साथ उसका एक सिमेंटिक एक्शंस भी डिफाइन होगा एट द टाइम ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. क्लियर? मीन्स S is equal to ID equals to E. First production, for example, मैं आपके लिए ले रहा हूँ. S drives to I, ID is equal to E. So in this production, what is the main operation? The main operation is assignment. Clear? So using that 3 address code, using that CFG, आप 3 address code में last 3 address code देख सकते हैं. ID is equal to T2. What is T2 here? T2 is nothing but the value of E. Here,
E dot value is T2. E T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यू कैन से T2 is representing now E. So ID is equal to T2. ये टाइप का 3 headers कोड ये प्रोडक्शन से जनरेट होना चाहिए. Clear? So this type of calculations or this type of actions should be written in intermediate code generation. वो हम सबको लिखना है according to language. Clear? किस प्रोडक्शन के लिए क्या सिमेंटिक एक्शन होना चाहिए ये कंपाइलर डिजाइनर को डिसाइड करना है. क्लियर? सो फॉर दैट पर्पस ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द सिमेंटिक एक्शंस, वो सब कुछ कहाँ होगा, ये सब हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे, मींस प्रोडक्शन को इन तीन में से किसी एक रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, उसके लिए इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास जो टूल है, जो इम्प्लीमेंटिंग टूल है, दैट इज नथिंग बट द SDTS. ध्यान से सुनना, SDTS, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स. कुछ स्कीम्स हैं जिनके हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो स्कीम्स भी आप ही को लिखनी है एज ए डिजाइनर. क्लियर? सो एक बार आपने स्कीम्स डिफाइन कर दी, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट स्ट्रिंग, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रामर, they will apply and generate the 3 headers code or polish notation or syntax. Clear? I think that is more than sufficient explanation of output of the intermediate code generation. Now I will explain some all the concepts through some examples. Clear? डायरेक्टली अब हम सिर्फ 3 headers कोड की बात करेंगे. मैं आपको कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ 3 headers कोड जनरेट करके बताता हूँ डायरेक्टली.